नमस्कार दोस्तों आज से 5 साल पहले हमने राहगीर इंडिया की शुरुआत करी थी और ये सोचकर करी थी कि हजारों और लाखों स्टूडेंट्स जो कि कोचिंग एकेडमी से धोखा खाकर उसके बाद भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनकी हेल्प किस तरह से करी जाए। हमने अपनी वेबसाइट के जरिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो भी सिलेबस है वो दिया, कुछ हमने बुकलेट्स तैयार करी और इस तरह से एसएसबी का जो भी हम गाइडेंस दे सकते थे वो हमने आपको देने की कोशिश करी है। दोस्तों, हमने रियलाइज किया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि एसएसबी में उनसे क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनसे पूछा जाएगा और किस तरह से वो अपनी पर्सनैलिटी एसएसबी में दिखा सकते हैं। हमने इसके लिए अपने 2 कोर्सेज शुरू करे हैं। एक तो 15 डेज का क्रैश कोर्स जिसमें कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और जीटीओ के बारे में पूरी तरह से बताया जाता है। और इसके साथ में ही हमने एक पर्सनलाइज्ड कोर्स भी स्टार्ट किया है जिसमें कि वो स्टूडेंट्स जो कि अच्छी तरह से तैयारी हैं लेकिन अपने आप को एसएसबी टेस्ट कंडीशंस में चेक करना चाहते हैं, वो इस कोर्स में आकर अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स में हम हर कैंडिडेट का साइको एनालिसिस टेस्ट करके उसे ब्रीफिंग करते हैं कि किस तरह से एसएसबी में अप्रोच किया जाए और किस तरह से उनकी मिस्टेक्स को वो काबू में ला सकते हैं। हालांकि आप सब कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आप सबके लिए वो ब्रीफिंग जो हम कैंडिडेट्स को देते हैं वो रिकॉर्ड करके आपको वीडियो के थ्रू हमने देने की कोशिश करी है। टुडे इन दिस ब्रीफिंग I'll tell you the complete process कि कहाँ पे कैसा होता है and where you should put in focus and कहाँ पे where is your make and break things. Okay, so I'll start the screen sharing now from where you can see what are exact things. This is the screen. We'll start with this. So how you approach SSB and what all things are there in that. So normally you all are aware that it is a 5 days SSB process. All of us know that. And इसमें से then we have there 3 stages. In stage 1 is the screening. Stage 2 is your 3 tests: psychological test, SSB interview, GTO, and finally once you clear these stages after conference, your medical is done. So this much is aware. All of us are aware of that. Screening is important because in screening, if you don't clear screening, so even if you are prepared, जितना भी आप prepare करके गए हो, अगर screening नहीं clear करोगे, then you are nowhere. So screening is important. And in screening, there are 2 tests. One is officer intelligence rating test. The next important thing is your PPDT, picture perception and description test, जिसके ऊपर की आपने story लिखनी होती है and then you do the description and thereafter is a group discussion on that. In the second stage, once you clear this thing, is your psychological test, which has got 3 parts. Main 3 parts are there, which is thematic perception test, जहां भी आपका story writing होता है. 11 pictures, you have to write a story on all those pictures, and one is blank story. Then is your word association test, जिसमें कि आपको 60 words दिए जाते हैं, आपने उसमें एक sentence बनाना है. And third is your situation reaction test, where your situation is given and you have to reply to that situation. Self description test is there, but that's just a normal thing. It's not a big thing. Then you have your GTO test, जहाँ पे कि other than tasks, you have your lecturate and group discussion and group planning exercise, and other than other tasks are there. And finally is your personal interview. तो अगर पूरा SSB प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे, there are 2 places which are most important. One is your psychological test, other is your personal interview. Because ये दो जो हैं, if out of these 3, minimum 2 people have to recommend. बट इन 2 में से भी आपका जो वीटो होता है, अगर द इंटरव्यूअर, पर्सनल इंटरव्यूअर गिव्स अ वीटो और द साइकोलॉजिस्ट गिव्स अ वीटो कि भाई ये पर्सन इज नॉट सुटेबल फॉर द इंटरव्यू और फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, देन यू विल नॉट बी सिलेक्टेड. लेकिन अगर जीटीओ ने मना भी किया हुआ है लेकिन अदर 2 हैव सेड यस, देन यू विल स्टिल गो थ्रू. So there are some cases where the borderline cases are there, where 2 of us have said okay, 1 person has said no. लेकिन अगर आपका जो है जीटीओ के अलावा बाकी 2 ने रिकमेंड किया है तो आप हो जाओगे. So out of these 3, the most important is your psychological test and your personal interview. अभी पर्सनल इंटरव्यू में आपको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यू कैन कंट्रोल समथिंग ऑन दैट. लेकिन जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट में 3 टेस्ट हैं, जिसमें कि आपका जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल कंफर्मेटरी टेस्ट. जो आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, दैट इज एट द कॉन्शियस लेवल, एंड थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो होता है, दैट इज एट योर सबकॉन्शियस लेवल. तो इसमें से आपका जो बाकी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन टीएटी जो है, सिंस इट इज फ्रॉम योर सबकॉन्शियस लेवल, आपका जो है, जो आपके अंदर की पर्सनैलिटी है, दैट कम्स आउट बाय व्हेन यू आर डूइंग थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट. ठीक है, तो इन तीनों में से अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट का बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टीएटी, विच इज थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, या जिसको हम स्टोरी राइटिंग बोलते हैं. ठीक है, तो पूरे इंटरव्यू मैंने 2 चीजें बताई थी. एक मैंने आपको बोला था साइकोलॉजिकल टेस्ट और दूसरा मैंने आपको बोला था पर्सनल इंटरव्यू.
साइकोलॉजिकल टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है टीएटी। जब हम चेक करना बैठते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, जब मैं चेक करता था तो सबसे पहले आई यूज्ड टू चेक योर टीएटी। अगर टीएटी में मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज क्लियर, देन आई यूज्ड टू चेक अप योर एसआरटी एंड देन इज योर वैट। वैट इज जस्ट अ कंफर्मेटरी कि बंदा ठीक है और आपके मार्क्स जरा देखने के लिए, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टीएटी, एंड टीएटी इज योर स्टोरी राइटिंग। तो आपकी स्टोरी राइटिंग यहाँ भी है और स्क्रीनिंग में भी है। सो इन कंप्लीट एसएसबी प्रोसेस अगर आप देखोगे, अगर आपकी स्टोरी राइटिंग अगर ठीक हो जाती है आपका जो है, देन ऑलमोस्ट यू टेक इट दैट योर 70 to 80% ऑफ योर इंटरव्यू इज डन। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, आई विल टेल यू 99.9% जो रिजेक्ट होके जाते हैं वो इसलिए रिजेक्ट होते हैं कि उनकी जो स्टोरी राइटिंग है, पीएटी एंड पीपीडीटी है, दैट इज नॉट करेक्ट। ओके, एंड इफ यू नो कि किस तरह से उसको हैंडल करना है, कैसे आपने उसको करना है, देन यू कैन इजिली डू इट। ठीक है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने हाउ डू वी अप्रोच टीएटी, हमने स्टोरी राइटिंग कैसे करना है। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू ब्रीफ यू इनिशियली। तो अभी क्वेश्चन आता है कि सर कैसे हैंडल करें। देयर इज अ वेरी वेरी साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग इट। अगर आप उसको तरीके से करोगे तो आप कभी गलत नहीं जाओगे। 4 इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आपने कभी भी आपको स्टोरी की पिक्चर आएगी, अगर आप इन सीक्वेंस में जाओगे और इसके बाद व्हेन वी डू द कोर्स, जब आप कोर्स करोगे, आई विल एक्सपेक्ट यू टू गो इज दैट वे ओनली। अपने तरीके से नहीं करना है, इसी में से करना है। फर्स्ट थिंग आता है कि पिक्चर को ऑब्जर्व करना है। जो आपको पिक्चर दी है, 90% ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज कि आपको पिक्चर दी गई है, आप उसको देखते हो नहीं और आंख बंद करके लिखना शुरू कर देते हो। आप ऑब्जर्व ही नहीं करते हो उसको। आपके दिमाग में प्री फेड स्टोरी होती है। आप कोई, ज्यादातर लोग कोचिंग एकेडमी में जाते हैं और 60 लोग वहां बिठाए होते हैं, एक आपको पिक्चर दिखाई जाती है, उनको बोलते हैं कि भाई ये इसकी जो है ये आपकी डीएस सॉल्यूशन है, इस टाइप की आपको स्टोरी लिखनी है। एंड फाइनली दोस पीपल स्टार्ट राइटिंग दो स्टोरीज, बट ऑल ऑफ यू हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज। आप में से कुछ लोग सोल्जर्स होते हैं, somebody is from urban background, somebody is from a rural background, somebody is from हिमाचल, somebody is from दिल्ली। तो सबका अपना अपना जो है पर्सनैलिटी होती है। यू कांट राइट वन स्टैंडर्ड स्टोरी फॉर ऑल द पिक्चर्स। तो इसलिए आपको जो है ऑब्जर्व करना पिक्चर को सबसे इंपॉर्टेंट आना चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज होती है थीम सेलेक्ट करना। जब आपने एक बार पिक्चर को ऑब्जर्व कर लिया है, उसके बाद कौन से थीम के ऊपर मैंने लिखनी है, किस तरह से थीम करना है। थर्ड इज सिलेक्टिंग द मेन कैरेक्टर, हीरो, एंड फाइनली इज कंस्ट्रक्टिंग अ स्टोरी एंड राइटिंग स्टोरी। तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं। आई विल ब्रीफ यू वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो फर्स्ट चीज जो आपका होता है कि ऑब्जर्व कैसे करना है पिक्चर को। इट्स वेरी वेरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। गांठ बांध लो जो मैं बता रहा हूँ, ये मत भूलना कभी भी जो मैंने पिक्चर ऑब्जर्व करने के लिए दिया है, बिकॉज कोर्स में भी आप यही गलती करोगे। सबसे पहले जब आपको पिक्चर आती है, जस्ट टेक अराउंड 10-15 सेकंड्स फॉर दैट कि कैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो। सबसे पहले उसका बैकग्राउंड देखो, कुछ और नहीं देखना है, सीधा बैकग्राउंड में जाओ कि यार है क्या बैकग्राउंड में। अर्बन है, रूरल है, रिवर नजर आ रहा है, डेजर्ट आ रहा है, माउंटेन्स नजर आ रहे हैं, क्या नजर आ रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू चेक। सेकंड थिंग देखो कि उसमें जनरली कितने लोग हैं। दे आर 2 पीपल, एक औरत है, दे आर 1 गर्ल, और देयर 1 बॉय, और देयर सम 5-6 पीपल आर देयर। सो जस्ट लुक एट दोस पीपल कि कितने लोग वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। थर्ड थिंग आपने देखना है कि वहां पर उस पिक्चर में हो क्या रहा है, कि कोई लोग हंस रहे हैं, कोई खेल रहा है, कोई डूब रहा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है। जस्ट सी कि व्हाट इज हैपनिंग इन दैट पिक्चर। एंड फोर्थ थिंग यू ऑब्जर्व इज व्हाट इज द मूड ऑफ दोस पीपल। आर दे लाफिंग, आर दे क्राइंग, और क्या मतलब उनका जो मूड है, और इज इट ए न्यूट्रल मूड। ठीक है, तो 4 स्टेप प्रोसेस। पहली चीज उसका बैकग्राउंड देखो पिक्चर का, दूसरी चीज कितने लोग हैं वो देखिए, तीसरी चीज कि वहां पे क्या चल रहा है, एंड चौथी चीज जो है लोगों का मूड कैसा है। ठीक है शनाज, आर यू गेटिंग मी? यहाँ तक क्लियर है? सतीश ठीक है ना यहाँ तक? ठीक है, सिंपल, आई एम जस्ट टेलिंग इन वेरी सिंपल लैंग्वेज कि आपने ये 4 चीजें देखनी है। जब ये आपने 4 चीजें देख ली, अब जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर। अब पीछे बैकग्राउंड देखोगे तो क्या नजर आ रहा है शनाज? कैन यू सी इन द बैकग्राउंड? व्हाट कैन यू सी इन द बैकग्राउंड? क्या नजर आ रहा है? दिस द कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री कहाँ पे होते हैं? बीच पे होते हैं। पीछे जो है आपका सी बीच, सी जैसा नजर आ रहा है, एंड दिस इज द बीच, एंड पीछे थोड़े से बादल नजर आ रहे हैं। So the background is somewhere where the sea is there, a sea beach is there, and a coconut tree is there. So this is the background which you need to observe. ठीक है, यहाँ तक नजर आ गया। उसके बाद आपने देखना है कि भाई कितने लोग हैं। तो यहाँ पे वेरी क्लियर है, दे आर 3 पीपल, है ना, 3 लोग हैं, 3 लड़के हैं। ठीक है, ये सेकंड चीज होगी, आपने देखा कितने लोग हैं। थर्ड थिंग आपने देखनी है कि हो क्या रहा है वहां पे। तो इसमें क्या दिख रहा है कि एक जिप्सी खड़ी है, पीछे घर है, ये 2 बॉयज हु आर टॉकिंग, एंड द थर्ड बॉय हु इज ट्राइंग टू रन टुवर्ड्स दिस थिंग, एक भागने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एंड फोर्थ चीज मैंने आपको कहा था कि मूड देखना है वहां पर। तो यहाँ पे जनरली नॉट वेरी क्लियर, सो इट्स लाइक ए न्यूट्रल मूड। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ पे कि किस तरह से आपने ऑब्जर्व करना है। तो जब आपने ये 4 चीजें ऑब्जर्व कर ली, तो उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है थीम। थीम बेसिकली कि किस चीज के ऊपर आप स्टोरी बनाने वाले हो, वो आपका थीम होना चाहिए कि जो उस स्टोरी में चल रहा है। ठीक है, इफ स्टोरी में कोई बंदा डूब रहा है तो आपने उसके डूबने के ऊपर थीम पे लेके जाना है।
कोई अगर गेम खेल रहे हैं, आपने गेम के ऊपर थीम बना लिया, लेकिन ये ध्यान रखना है कि फाइनली जो है दैट शुड बी एंडिंग इन 1 or 2 OLQs। आपकी जो भी स्टोरी बनाओगे, बिकॉज फाइनली यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड एज आर्मी ऑफिसर्स या डिफेंस ऑफिसर्स, किसी भी आप उसमें जा रहे हो। एंड डिफेंस में सिलेक्शन के लिए हमारी आर्मी ने, हमारे डिफेंस फोर्सेस ने 15 OLQs दिखाई है कि हमारे को ये 15 OLQs इसमें से चाहिए। एंड दिस इज अ प्रोमलगेटेड फैक्ट, ऐसा नहीं है कि हम बनाए हैं। तो 15 दे रखा है, तो आपको जो है उनमें सेलेक्ट होने के लिए हम चेक करेंगे कि कितनी मैक्सिमम क्वालिटीज आप दिखा सकते हो। तो आपने उस स्टोरी में ट्राई करनी है कि हर स्टोरी में 1 या 2 क्वालिटीज उसमें से आप दिखा पाओ। तो आपका जो थीम है, आपकी स्टोरी है, दैट शुड बी फर्स्टली रिलेटेड टू व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, एंड देन इन द एंड इट शुड शो 1 or 2 क्वालिटीज। करेक्ट, दैट्स फाइन। एंड देन थर्डली जो है, जो वहां पे हो रहा है और जो कैरेक्टर्स हैं, ट्राई टू कवर दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए 4 कैरेक्टर्स हैं वहां पर और आप वहां पे उस गाड़ी के ऊपर पूरी स्टोरी बना दो और बाकी किसी के बारे में कुछ ना लिखो। तो ट्राई टू इन्वॉल्व एवरीबडी इन द स्टोरी। समझे यहां तक? ठीक है। तो थीम कैसे सिलेक्ट करना है, आई टेल यू लेटर ऑन, डोंट वरी, सब कुछ हम बताएंगे। उसके बाद आपने एक मेन कैरेक्टर सिलेक्ट करना है। पहले आपने ऑब्जर्व कर लिया, फिर आपने दिमाग में बना लिया कि अच्छा यार ये टाइप की मैं स्टोरी बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, ये OLQ नजर आएगा। और उसके बाद आपने एक मेन कैरेक्टर सिलेक्ट करना है। उन लोगों में से जो आपको नजर आ रहे हैं, उनमें से ट्राई करिए कि जो मोस्ट प्रोमिनेंट बंदा है वहां पर या बंदी है, गर्ल और बॉय और दिस थिंग इज देयर, select that person as a main character. It can be both male and female. For girls, आप maximum stories में से out of 12 you can keep 8 and 9 as girls and 3 or 4 can be male. And for boys it can be say 2 or 3 females and rest can be male. Okay. Predominantly आपका जो आप जिस gender के हो वो रखिए, लेकिन you can always take male or a female as a gender. ठीक है, but predominant आपका जो gender है वैसे आप generally try to keep that as a main hero. And then आपने जो उसमें ऊपर जब लिखना है, the story should always start with your main character. याद रखना हमेशा, this is a very very important thing. आपने अगर रखा हुआ है से शहनाज इज योर हीरोइन या हीरो जो है मेन कैरेक्टर है, तो आपने हमेशा स्टोरी शहनाज से लिखनी है कि शहनाज इज अ 21 years old गर्ल स्टडीइंग इन सो एंड सो कॉलेज एंड दिस। ठीक है, ये नहीं लिखना है कि शहनाज एंड प्रतीश आर 2 friends एंड डूइंग दैट, बिकॉज देन आई एम कंफ्यूज्ड कि आप में से कौन सा मेन हीरो है। आई विल ओनली सिलेक्ट द क्वालिटीज ऑफ योर मेन कैरेक्टर। तो आपने स्टोरी स्टार्ट करनी है सिर्फ शहनाज से, जो आपकी मेन कैरेक्टर है। ठीक है, ये नहीं करना है कि मेन कैरेक्टर बीच में आ जाएगा, बाद में आ जाएगा ना, आपने स्टार्टिंग से ही मेन कैरेक्टर से स्टार्ट करना है। ठीक है। थर्ड थिंग है, यू कैन ऑलवेज सिलेक्ट अ कैरेक्टर फ्रॉम आउटसाइड। जैसे बाई चांस एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, सो दैट डेड बॉडी कांट बी हीरो यार। ठीक है, वो मर चुका है, उसका नहीं हो सकता डेड बॉडी। सो नेचुरली इन दैट कंडीशन यू सिलेक्ट अनदर पर्सन दैट ओके, उसका कोई फ्रेंड है या उसका कोई ब्रदर है कि वो आया, उसने देखा कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, ही ऑप्टेड फॉर ऑर्गन डोनेशन, या उसने जाके किस तरह से उसकी एक्सीडेंट हुआ था उसके लिए उसने काम किया। सो समथिंग लाइक दैट, सो यू कैन ऐड अ थर्ड कैरेक्टर व्हेन यू गेट स्टक अप इन सच स्टोरीज। सो दैट इज अबाउट योर मेन कैरेक्टर, कैसे हमने सिलेक्ट करना है। क्लियर यहां तक? ठीक है। एंड देन वी कम ऑन टू द स्टोरी, किस तरह से लिखनी है। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं स्टोरी के। फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन, सेकंड इज, हाँ शनाज बोलो। So I have a question like जैसे हमें स्टोरी में 3 मेंबर्स शो हो रहे हैं, तो स्टोरी बिल्डअप करने के लिए हम लोग बाहर से कैरेक्टर्स इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक कोई डूबरा था तो उसके लिए। Yes, you can do it, but वो तभी करिए when you are not able to make anything on those characters जो आपको नजर आ रहे हैं। अगर उन्हीं में से मैं किसी को एक हीरो सिलेक्ट कर सकता हूँ तो वही रखिए, बट लाइक जहां पे नहीं कर सकते हो, आपको लग रहा है कि ये तीनों जो है दे आर नॉट सुटेबल फॉर माई मेन कैरेक्टर्स, अगर 2 भिखारी नजर आ रहे हैं तो आप आर्मी ऑफिसर भिखारी नहीं बनाओगे। एड अनदर पर्सन हु हेल्प्स दोस बेगर्स। ठीक है, सो मेक दैट वे, अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू द मेन स्टोरी। मेन स्टोरी कैसे लिखनी है, इसमें से 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्टली इज योर इंट्रोडक्शन इन दैट, किस तरह से आपने जो है, एंड दैट इंट्रोडक्शन इज योर मेन कैरेक्टर। ओके, शहनाज वाज सो एंड सो, शी वाज वर्किंग एट दैट प्लेस, एंड जिस टाइप की आप स्टोरी लिखना चाहते हो, लाइक अगर आपने से स्पोर्ट्स का, एथलेटिक्स का लिखना है, तो लिखना है कि फ्रॉम हर चाइल्डहुड ओनली शी वाज इंटरेस्टेड इन डांसिंग और इन से रनिंग और इन स्पोर्ट्स एंड ऑल। जिस टाइप की आप स्टोरी लिखने वाले हो उस टाइप का रखिएगा आप, थोड़ा सा उसमें से बेसिक थिंग अबाउट हर। देन इज योर मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी, कि वहां पे क्या चल रहा है, एंड दैट शुड बी रिलेटेड टू द व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टिमुलस। ठीक है, दैट शुड बी हैपनिंग कि जो आपको वहां पे दिया हुआ है कि वन डे व्हेन शहनाज वाज कमिंग बैक फ्रॉम हर ऑफिस, शी सॉ दैट देयर वाज अ एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट में उसने क्या किया, उसने उसको फर्स्ट एड दिया, ये दिया एंड ऑल दैट। सो ऑल दोस थिंग्स कम अप एज पार्ट ऑफ योर मेन पार्ट। ठीक है, एंड लास्ट में थोड़ा सा आपने पॉजिटिव आउटकम दिखाना है कि फाइनली जो आपने एक्शंस लिए उससे क्या हुआ, दैट एवरीबडी से परचे और एवरीबडी अप्रिशिएटेड हर एफर्ट्स, एंड और या फिर अगर आपने से स्पोर्ट्स में रखा हुआ दैट शी वन अ मेडल एट द नेशनल्स और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो आपका जो इनिशियल इंट्रोडक्शन अबाउट योर मेन कैरेक्टर,
Second is whatever is happening in that story, 4-5 lines for that. First introduction is around 2 lines, 4-5 lines about your main part, and around 1 or 2 lines about your ending. So total 9 to 10 lines of story. That's all you need to write. उससे ना तो कम लिखना है ना ज्यादा लिखना है. So that is about constructing the story. ठीक है? Okay, we are talking about handling stimulus. आपको जो स्टिमुलस दिया जाता है 3 टाइप का आपको स्टिमुलस दिया जाएगा. ठीक है? सो आपका जो है नॉर्मली व्हेन वी गिव स्टिमुलस इज जो आपको पिक्चर दिया गया है उसमें से दैट इज योर स्टिमुलस व्हिच हैज बीन गिवन एंड दे आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ स्टिमुलस. ठीक है? अभी हम बोलते हैं कि यार आपको जो स्टिमुलस दिया जाता है it's you can perceive the way you want and then answer it, but the problem is here like we want you as army officer not as doctors or engineers. So as an army officers I want you to be say answering in a particular manner कि आपका जो है observing style और आपका जो है the final what you are giving out to me that should be matching those OLQs. तो आपका जो stimulus दिया जाता है उसके ऊपर जो आपका reaction है that should be matching the officer like qualities which we want from you for defense forces. ठीक है? तो आपका 3 टाइप का स्टिमुलस हो गया. फर्स्ट इज नेगेटिव, सेकंड इज योर पॉजिटिव ऑब्लिक न्यूट्रल, सेकंड इज योर पॉजिटिव एंड थर्ड इज योर न्यूट्रल स्टिमुलस. नेगेटिव स्टिमुलस बेसिकली कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी का डेथ हो गया है या कोई रो रहा है, एंड दिस इज द इजीएस्ट टू हैंडल. क्योंकि क्या होता है कि आपने अपने हीरो का जब क्वालिटी दिखाना है तो हीरो की क्वालिटी आप कब दिखा पाओगे? जब कोई प्रॉब्लम हुई है. तो नेचुरली अगर जैसे कहीं एक्सीडेंट हुआ है, आपका हीरो वहां पे गया, मेन कैरेक्टर आपका वहां पे गया, उसने एक्सीडेंट वाले को फर्स्ट एड दिया, उसको आपको उठा के हॉस्पिटल ले गया एंड डिड ऑल दोस थिंग्स एंड यू शो हिज क्वालिटीज. और somebody से फॉलन और somebody sick या कोई डूब रहा है, आपने जाके उसको बचा लिया, आपने अपनी करेज की दिखा ली या कुछ दिखा लिया. ठीक है? सो द नेगेटिव स्टिमुलस इज वेरी इजी टू हैंडल बिकॉज यू नो यू ऑलरेडी हैव अ प्रॉब्लम एट योर हैंड एंड यू कैन इजिली कवर इट अप. द प्रॉब्लम कम्स व्हेन इट इज पॉजिटिव और अ न्यूट्रल स्टिमुलस. न्यूट्रल स्टिमुलस की जहां पे आपको कुछ नहीं, बेसिक चीजें हैं कि आपका जो है nobody is crying or nobody has fallen or nobody is dying, या फिर जो पॉजिटिव है जहां पे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है? एवरीबडी इज लाफिंग. तो उसमें क्या करना है आपने? अब somebody is laughing और somebody is all are happy, तो आप प्रॉब्लम कहां से दिखा रहे हो उसमें से? तो आप हीरो की जो है हाउ विल यू शो द कैरेक्टर और हाउ विल यू शो द क्वालिटी. ठीक है? क्योंकि आप क्वालिटी इंसान की तभी दिखाओगे व्हेन ही इज अंडर सम इशू. सो हियर द प्रॉब्लम कम्स. ज्यादातर लोग गड़बड़ क्या करते हैं, क्योंकि आपने अपने हीरो का कुछ अच्छा दिखाना है, so what you do is you try to add a problem here. Like even if somebody is not say having it's everything is going normal, आप क्या करते हो वहां पे कोई प्रॉब्लम दिखाना शुरू कर देते हो. ठीक है? I'll give you one example. Like here, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है कि there are some boys जो कुछ अपने उन्होंने बाजू रेज कर रखा है, there is some guy who's addressing them. ठीक है? नॉर्मल नजर आ रहा है. शहनाज क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? Anything else can you see? Yes, sir. There are some boys है ना who are being say somebody is motivating them और कुछ बात चल रखी है. पीछे कुछ नजर आ रहा है? कैन यू सी सम कचरा या कुछ एनीथिंग लाइक दैट नजर आ रहा है ना? Yes, sir. तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, व्हाट पीपल से इज ओके कि से महेश वाज से जनरल मैनेजर ऑफ अ कंपनी एंड वन डे हिज वर्कर्स वेंट ऑन टू स्ट्राइक एंड देन दे स्टॉप द प्रोडक्शन, या देयर वाज सम प्रॉब्लम इन द कंपनी एंड दे डिड दैट, है ना? एंड देन ही गोज देयर, ही स्पीक्स टू देम, उनसे बात करता है, टेल्स देम ओके भाई हमारी फैक्ट्री हैज टू वर्क, ही परसुएट्स देम एंड देन दे कम बैक टू द वर्क. तो इसमें what is shown is they show the leadership quality and he shows the persuasion capability of this guy. So actually speaking, he's done the right thing because उसने कुछ आपने quality दिखानी है तो उसने दिखा दिया है. But the problem here is that problem is not shown. Where is the strike? ये लोग अगर placards लेके बैठे होते हैं यहाँ पे, अगर दिखा रहे होते कि भाई ओके आज से काम बंद, the work बंद and all that, then it would have been right क्योंकि आपने stimulus में दिया हुआ है. But here in stimulus, I have not given you any strike. I have not given you any problem here. आपने क्या किया है, यू हैव इन्वेंटेड अ प्रॉब्लम व्हेन इट वाज नॉट शोन. तो अगर आप प्रॉब्लम नहीं इन्वेंट कर रहे हो देन व्हाट शुड यू डू? व्हाट इज द अदर वे? अदर वे इज लाइक इसी स्टोरी में इफ आई विल गिव यू एग्जांपल, लाइक महेश वाज अ जनरल मैनेजर ऑफ सो एंड सो कंपनी. वन डे बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग सिचुएशन हिज कंपनी गॉट एक्स्ट्रा ऑर्डर्स. लाइक कोविड चल रखा है तो यूएसए से दे गेट द ऑर्डर से फॉर से 1000 से 1 मिलियन मोर मेडिसिन. ठीक है? और हिज कंपनी वांटेड टू एक्सपैंड. तो उसमें क्या होता है, एक्सपेंड करना है, काम करना है, दे हैव गॉट सम चैलेंज, एक्स्ट्रा चैलेंज टू देम. देन ही गोज टू हिज वर्कर्स, ही टेल्स देम दैट ओके वी हैव गॉट सम एक्स्ट्रा वर्क, वी हैव टू एक्सपेंड, हमारा काम ज्यादा है, हमारी कंपनी की इज्जत का सवाल है, वील ऑल वर्क टुगेदर एंड वील डू एक्स्ट्रा वर्क, वील गिव यू सम एक्स्ट्रा मनी एंड देन वी ऑल डू टुगेदर एंड वर्कर्स गो एंड स्टार्ट डूइंग वर्क. तो दोनों स्टोरीज में फाइनल काम वही हुआ है कि वर्कर्स हैव अगेन स्टार्टेड डूइंग एक्स्ट्रा वर्क. उन्होंने परसुएशन कैपेबिलिटी ही दिखाई है, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई है आपके हीरो की. लेकिन एक तरफ आपने क्या किया था,
एक तरफ आपने नेगेटिविटी डाल दी जब मैंने दिखाई नहीं थी, आपको स्टिमुलस में नहीं दिया था, और दूसरी तरफ उसने क्या किया है, ही एडेड अ चैलेंज। तो आपको जब भी कोई पॉजिटिव या आपको आपका न्यूट्रल स्टिमुलस नजर आता है, तो आपने उस स्टिमुलस को सिर्फ एक तरीके से हैंडल करना है, एंड दैट वे इज हैंडलिंग गिविंग ए चैलेंज। जैसे अगर दो लोग आपस में बैठे हुए हैं, आपको बीच में कहीं एक स्टोरी दे रखे, देयर थ्री पीपल आर डिस्कसिंग, जिसमें एक लेडी है, देयर टू जेंटलमैन, ऑल थ्री ऑफ देम आर नॉर्मल, आपस में बात कर रखे हैं। तो आपके ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन इन विलेज, वो प्रोफेसर है, एजुकेशन नहीं चल रहा था, एंड देन दे गो एंड दे टॉक देयर एंड गेट्स द एजुकेशन डन, या फिर देयर वाज सम प्रॉब्लम्स ऑफ से चाइल्ड बर्थ या प्रॉब्लम्स ऑफ दिस थिंग। सो दे ऐड सो मेनी प्रॉब्लम्स। Instead of this, if you say that he was a professor, he goes to the schools, he checks everything is fine there, then he wants to add on something like he wants to do something for the skill development of girl child there, or skill development of students. तो इसमें उसने कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन उसके बाद वो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है। ही टेक सम इनिशिएटिव, ही टेक सम सोशल थीम विद हिम। ठीक है, सो जब नॉर्मल चल रखा है, जब आपस में डिस्कशन चल रही है, जब कुछ दिखा नहीं रहे हैं, तो व्हाई टू ऐड अ नेगेटिविटी देयर? add a challenge, add a theme, positive theme, and then show the qualities on that. तो आप बिना नेगेटिविटी दिखाए भी आप पॉजिटिव चीज से तरीके से आप दिखा सकते हो। दैट इज द मेन थिंग ऑफ हैंडलिंग अ स्टिमुलस। तो फाइनली आपने ये समझना है कि फाइनली जो मैंने आपको बताया है कि टीएटी जो है दैट इज मेक अवे, ठीक है, मेक और ब्रेक इन योर एसएसबी। जो आपकी स्टोरी राइटिंग है, तो स्टोरी राइटिंग ही आपके एसएसबी में भी आएगा, आपके जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी आएगा, और आपकी स्क्रीनिंग में भी आएगा। एंड अगर आप इसको ढंग से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आप स्टिमुलस को ठीक से हैंडल कर रहे हैं, देन यू कैन हैंडल दिस करेक्टली। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सारी ब्रीफिंग आपके बहुत काम आएगी और आप अच्छी तरह से अपने आप की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स हमारे कोर्स में आना चाहते हैं, अच्छे से पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लेना चाहते हैं, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ इसे मैक्सिमम शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।